The undercover investigation has been carried out in good faith and in public interest. The organization and the journalist conducting the investigation are in no way associated or aligned with or against any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group named in the video or otherwise. Any reference, direct or indirect, made either to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group, or to any association, proximity, enmity, rivalry, hatred for, towards, between any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group is purely for the purpose of the investigation. It should not be insinuated from the contents of the investigation that the organization or the journalist conducting the investigation has done so either to target or at the behest of any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group. References in the video made by the persons other than the journalist conducting the investigation to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group are the sole prerogative and personal opinion of the respective persons. The organization and the journalist conducting the investigation do not intend to outrage, insult, wound, or hurt any religion or the religious sentiments, beliefs, or feelings of any persons or class or community while conducting the investigation. Viewers are advised that the videos have been transcribed to the best of our ability. Transcribing is a painstaking process and error-prone work. In case of any error, the video along with the audio should be referred to. Errors, if any, in transcribing are purely bona fide and unintentional. It should be remembered that subtitles are only an aid to the viewing process. Any misrepresentation or deviation of the editorial from the original documentary in Hindi as published on the official website of Cobra Post, or error due to translation into vernacular in news stickers, news bands, or any other visual element is the sole responsibility of the media channel carrying the story, whether in part or whole. पीछे की खबर। हम हैं समाचार प्लस। कोबरा पोस्ट की तहकीकात में कई भारतीय मीडिया हाउस पैसे के बदले कंटेंट से समझौता करने के लिए तैयार दिखे। फिर चाहे बात इलेक्शन के दौरान हिंदुत्व का प्रचार हो या फिर ध्रुवीकरण की बात हो, हर चीज के लिए इन मीडिया प्रतिष्ठानों के लोग सहमत हो गए। वरिष्ठ पत्रकार पुष्प शर्मा की तहकीकात के दौरान इन तमाम मुद्दों पर मीडिया संस्थान, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म के ऊंचे पदों पर बैठे लोग न सिर्फ तैयार दिखे, बल्कि मोटी रकम के बदले इस सांप्रदायिक कैंपेन को चलाने के लिए भी सैकड़ों रास्ते बताए। 2 के आसपास बोल रहे हैं, 2 के लेट्स सी। नहीं, इसको पत्रकार पुष्प शर्मा ने अपना एजेंडा चलवाने के लिए मीडिया संस्थानों के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को अच्छी खासी रकम देने की पेशकश की। एजेंडा कुछ इस तरह से था। पहले चरण में हिंदुत्व के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए खास तरह से बनाए गए धार्मिक प्रोग्राम को चलाना। उसके बाद मुहिम को और धारदार बनाने के लिए सांप्रदायिक रंग देना, जिसमें विनय कटियार, उमा भारती और मोहन भागवत जैसे हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े लोगों के भाषणों का प्रचार शामिल है। इलेक्शन के नजदीक आने पर विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं पर पप्पू, बुआ और बबुआ जैसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर व्यंग्यात्मक प्रोग्राम चलाना भी शामिल है। मीडिया प्रतिष्ठानों को ये कैंपेन अपने तमाम प्लेटफॉर्म जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, जिसमें ई न्यूज पोर्टल, ई पेपर, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर चलाना है। ये तमाम बातें ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, कंपनीज एक्ट 1956, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 का खुला उल्लंघन है। साथ ही ये तमाम कारनामे नॉर्म्स और जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 1978 में भारतीय संसद द्वारा प्रेस में वॉचडॉग के रूप में स्थापित किया गया था, का भी खुले तौर पर उल्लंघन है। ये तहकीकात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मीडिया को लग चुके रोग और गोरख धंधे की न सिर्फ सूचक है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि किस तरह भारतीय मीडिया आज सेल पर है। बातचीत के दौरान सामने आए तमाम पहलुओं का सार कुछ इस तरह है। ये अध्यात्म और धार्मिक प्रवचनों की आड़ में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो गए, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है।
ये ऐसा कंटेंट चलाने को भी तैयार हो गए जो कि इलेक्शन को धार्मिक आधार पर तरंगित कर सकता है। ये सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने और विरोधी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए बदनाम करने वाला कंटेंट चलाने के लिए भी तैयार हो गए। इनमें से काफी संस्थान इस काम के लिए रकम कैश में भी लेने को तैयार हो गए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग है। कई संस्थानों के मालिक या फिर अधिकारियों ने आरएसएस से अपने जुड़ाव की बात मानी या फिर अपना झुकाव पहले से ही हिंदुत्व की तरफ होने की बात कही और खुशी खुशी इस अभियान को चलाने की भी बात कही। यानी पत्रकारिता के मूल सिद्धांत निष्पक्षता से समझौता, ये खुलेआम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कई मीडिया संस्थान सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में स्टोरी लिखने के लिए भी तैयार हो गए, जो कि खुले तौर पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का उल्लंघन है। इस काम के लिए कई मीडिया संस्थान न सिर्फ एडिटोरियल चलाने बल्कि उन्हें खुद विकसित करने को भी तैयार हो गए। लगभग सभी मीडिया संस्थान जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, जिसमें ई न्यूज पोर्टल, ई पेपर, वेबसाइट और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर पर इस अभियान को चलाने के लिए भी तैयार दिखे। कुछ मीडिया संस्थान पत्रकारों के जरिए न सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए तैयार हुए बल्कि दूसरे संस्थानों के पत्रकारों के द्वारा भी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में खबरें कराने की बात कही। कुछ मीडिया संस्थानों के लोगों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वो सरकार के कहे मुताबिक काम करते हैं और अपने व्यापारिक संबंधों की वजह से सरकार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। कई संस्थान राहुल गांधी जैसे नेताओं के चरित्र हनन के लिए कंटेंट बनाने और प्रचार करने के लिए भी तैयार हो गए। इन मीडिया संस्थानों में कुछ कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली, मनोज सिन्हा, जयंत सिन्हा, मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी के खिलाफ स्टोरी चलाने के लिए भी राजी हो गए। कुछ संस्थान एनडीए सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के कुछ बड़े नेताओं जैसे अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ स्टोरी चलाने को भी तैयार हो गए। कुछ मीडिया संस्थान प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कामनी जायसवाल और इंदिरा जयसिंह जैसे कानूनी जानकार और नागरिक समाज के बीच जाने माने चेहरों को बदनाम करने के लिए भी सहमत दिखे। कुछ संस्थानों ने आंदोलन करने वाले किसानों को माओवादी के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए भी सहमति जताई। पत्रकार पुष्प शर्मा श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति उज्जैन के प्रचारक बनकर इन मीडिया संस्थानों के लोगों से मिले और खुद का नाम आचार्य अटल बताया। साथ ही शर्मा ने खुद को IIT दिल्ली और IIM बेंगलोर का पास आउट बताया। खुद के ऑस्ट्रेलिया में बसने और स्कॉटलैंड में गेमिंग कंपनी चलाने की बात कहकर हिंदुस्तान में हर साल चंद महीने हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए काम करने की बात भी कही। कुछ जगहों पर शर्मा ने खुद को ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी बताया। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पुष्प को ये जिम्मेदारी खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ही दी। मध्य प्रकाश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने पुष्प को अपने लड़के अरविंद से मिलने के लिए भी बोला। अरविंद ने मुलाकात के दौरान पुष्प की नियुक्ति के लिए 50,000 रुपए भी लिए। मैं चाहता हूं कि आपका झंडा बैनर के साथ आपकी ताकत को लेकर के हम लोग वहां जाएं और विधानसभा में जो भी आपका आदेश होगा उसी हिसाब से फिर अलायंस होगा या जो भी कुछ होगा वो आपके निर्देश के अनुसार होगा। ठीक। तो इसका कोई पत्र हमें मिल जाए विधायक जी और मंत्री जी या फिर कोई हमें पार्टी के लेवल पे क्या आदेश मिल सकता है, लेटर हेड के ऊपर कुछ भी जो भी आप चाहें वो मिल जाए। आप आदेश करिए। मैं मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए तैयार हूँ और मैगजीन हमारी 2-3 महीने में शुरू हो जाएगी। हमारा जो किसी भी दल का जब रजिस्ट्रेशन होता है दिल्ली जी तो पूरे देश में राजनीति करने के लिए होता है जी, और वो व्यक्ति कितना कहाँ तक फैल सकता है देश में उसके ऊपर निर्भर उसकी है। क्षमता के ऊपर है जी। अब उसमें उनका मानक है कि प्रदेश में 6% वोट या 3% MLA तो वो मान्यता प्राप्त दल प्रदेश में हो जाता है। अगर 4 स्टेटों में उसका हो जाता है तो राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है। तो वो अपना इसी तरह का मूवमेंट उनका है जी। तो कहीं कोई रोक नहीं है। और अभी हम बात करवा देते हैं और अभी से बात करा देते हैं और वो सब लिख पढ़ के आपको मिल जाता है और आप वहाँ काम करिए। जब भी ज़रूरत हो तो हम लोग आते जाते रहेंगे। हम लोग के नेता हैं और लोग आते जाते हैं। ठीक है, पार्टी में हमें कोई स्थान दे दीजिए मंत्री जी, क्योंकि आप वहाँ प्रदेश की कमान देखिए, क्या दिक्कत है। ठीक है,
ताकि हम झंडा बैनर लीगली यूज़ कर सकें, कोई हमें रोक टोक करने वाला ना हो। नहीं वहाँ, और उसको करिए। ठीक है। कोष की व्यवस्था के लिए कुछ करना है तो आदेश करिए मंत्री जी। हम कौन आदेश करेंगे? ठीक आइए हाँ जानता हूँ। पचास वो अभी शक्ति भाई आ रहे हैं, ड्राइवर बना के आपको दे के तब जाइएगा, लेके तब जाइएगा। हाँ, आप तो रहिए, ठीक ना, आप आराम करिए, मतलब अभी 10-15 मिनट में आ जाते हैं। जैसे ही हो जाता है आपको हैंडओवर करते हैं इनके आपके पोस्ट पर आपका कार्ड, आपका नियुक्ति लेटर और आपका सक्रिय संस्था कार्ड। ये क्योंकि ये यहाँ अवेलेबल नहीं, ये अवेलेबल है आपके रसोड़ा कार्यालय पर। समझ गया, लेकिन आज तो कुछ तो दे देंगे ना। हाँ, आज मैं आपको फॉर्मेट दूंगा और आपके यहाँ डॉक्टर संतोष पांडे जी जाएंगे। अच्छा। 1 से 5 के बीच में उनको भेजेंगे। 1 से 5 के बीच में आप कोई भी डेट कह देंगे, उस डेट में हम इनको यहाँ से भेजेंगे। अभी हमने बात कर लिया है। ठीक है। मैं उनको कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दूँगा। एक ही व्यक्ति जाएंगे बस? हाँ, सिंगल तो उनका आने जाने का हम हाँ, तो मैं अभी उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है। ठीक ना, उनसे मैंने कहा है कि आप वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रेस की व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है। वो जाके प्रेस वार्ता कर देंगे कि आपको प्रदेश का प्रभारी और अध्यक्ष का नियुक्त यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। और जो वो लेटर है, वो लेटर मैं यहाँ से फैक्स करवा देता हूँ अपने विभाग से, और प्रयास करके आपको एक व्यवस्था करवाता हूँ वहाँ पर। ठीक है ना। हाँ, सिक्योरिटी वाली व्यवस्था है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। वैसे मिलना चाहिए। मैंने पंजाब में करवाया, झारखंड में करवाया, उत्तराखंड में करवाया, छत्तीसगढ़ में करवाया, तो यहाँ भी होगा। ठीक है। ठीक है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए देश भर के मीडिया संस्थानों के लोगों से मुलाकात की और अपने कैंपेन को चलवाने की बात की। इस कैंपेन का मुख्य हिस्सा पैसे के बदले प्लांट खबर चलाकर कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की छवि धूमिल करना भी था। कैंपेन में शुरुआत के 3 महीने सॉफ्ट हिंदुत्व का पेड कंटेंट चलाने के बाद खुले तौर पर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में 2019 के लिए माहौल बनाना शामिल था। सैंपल के तौर पर शर्मा ने कुछ जिंगल्स मीडिया संस्थानों के लोगों को सुनाए। ताज्जुब की बात यह है कि इन जिंगल्स को कुछ FM स्टेशन ने ही तैयार किया था। आपकी क्या क्या परेशानियां हैं? बेटा गांव में पानी बिजली तो है। हाँ, वो मेरे पास आया था, पप्पू वाला था। मैं क्या करूं? गांव में शमशान घाट बनवा देते तो ठीक रहता। ठीक है, इस बार हमको जिताना, सबके घरों में एक शमशान घाट जरूर बना दूंगा। क्या आप अपना वोट ऐसे पप्पू लीडर्स पे बर्बाद करेंगे? अपने वोट की कदर कीजिए, सही पार्टी के लिए वोट। ये जिंगल साफ तौर पर छवि खराब करने वाले, बदनाम करने वाले और मिथ्या थे, जो जनता के सामने संबंधित नेता की छवि को कमजोर साबित कर रहे थे। बातचीत के दौरान पुष्प शर्मा ने कहा कि इस काम के लिए उनके संगठन ने सिर्फ कर्नाटक इलेक्शन के लिए 742 करोड़ रुपए का बजट रखा है और आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए बजट हजारों करोड़ रुपए में है। इस बजट के सामने लगभग सभी मीडिया प्रतिष्ठानों के ऊंचे पदों पर बैठे लोग नतमस्तक हो गए और शर्मा के बताए एजेंडे को चलाने को भी तैयार दिखे। प्रेस और खबर समर्थक पेरिस की रिपोर्टर सांस फ्रंटियर्स यानी RSF, जिसे संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है, और दुनिया भर की पत्रकारिता क्षेत्र की 18 संस्थाएं जिससे जुड़ी हैं, नए साल 2017 में भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 136वें पायदान पर रखा है और इसीलिए इस छानबीन को हमने नाम दिया है ऑपरेशन 136। पुष्प ने कुछ संस्थानों के लोगों से ये भी मांग की कि वो न्यायपालिका के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्हें लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करें ताकि लोगों की नजरों में ये फैसले संदिग्ध और विवादास्पद बने रहें। आप भी सोच रहे होंगे कि जाहिर तौर पर हर मीडिया हाउस ने ऐसी शर्तें मानने से इनकार कर दिया होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पत्रकारिता के इस दौर में कुछ भी संभव है। यहाँ दोहरी चाल चली जाती है, बस इन्हें पैसों का दम दिखाइए, फिर जिस मर्जी नेता या पार्टी को बदनाम करा दीजिए। जैसा बोलिएगा, अगर किसी के साथ शो करके भी डेटा लेना होगा तो कर पहले हाँ, बस पैसा चाहिए। हाँ, पहले तहकीकात के दौरान कुछ विशिष्ट समूहों और लोगों के नामों का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह आकस्मिक थे और सच्चाई के सामने लाने के लिए भी जरूरी थे। ऑपरेशन 136 के पहले भाग में हमने इंडिया टीवी, दैनिक जागरण, हिंदी खबर, सब टीवी, DNA, अमर उजाला, UNI,
9 एक्सटेंशन, समाचार प्लस, HNN 24/7, पंजाब केसरी, स्वतंत्र भारत, स्कूप ऊप, rediff.com, इंडिया वॉच, आज हिंदी दैनिक और साधना प्राइम न्यूज से जुड़े लोगों की बातचीत के प्रमुख अंश दिखाए हैं।